Today we are starting the new chapter. सर आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किया था। It's already started recording. अच्छा ठीक है सर। So, today we are starting the new chapter, that is the transpiration. Transpiration. So, we have already discussed what is transpiration. Anyone want to say what is transpiration? Sir, movement of water in the form of water, sorry, loss of water in the form of water vapor from the aerial parts of the plant is called transpiration. Hmm. Correct answer. So, here it is the loss of the water in the form of water vapor from the aerial parts of the plant. So, this is the सर सर प्लांट का एरियल पार्ट तो स्टोमेटा ही है ना। no, what is the aerial part of the plant? सर सर वही तो पूछना चाह रहे थे। Aerial means सर जो हवा में Sir, in air. exposed to the air. So, whatever part of the plant is exposed to the air, what are the parts? Leaves, Leaves. stem, Leaves, stem, all these things, whatever is exposed from there, if there is a loss of water in the form of water vapor, okay, that will be the transpiration. Pranay, is it you or Ayush one? Sir, so Ayush. Ayush was Okay. और जो भी सर नया आदमी, sir, अरे उल्टा ये तो सीधा मेरे नाम नाम से Ayush भी आ was. गया सर। बाप रे बाप, कितने मोबाइल है भैया तुम्हारे पास? So second hand सर नहीं, मोबाइल का मोबाइल बिजनेस नहीं है है, लगता है। डिवाइस। डिवाइस बहुत चेंज हो रहा है मेरा। भैया लेके किसी दिन चल जाते हैं, किसी दिन फूफा जल्दी चल जाता है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम. सो मेरे नाम से सर घुस गया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं. तो ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज द ट्रांसपिरेशन. So, what is the importance of transpiration? Quickly, you can answer. So remove the excess of water from the plant. Okay. Anything else? सर सारा क्वेश्चन हो गया। आपको बाकी सब क्वेश्चंस में जो है आप सॉल्व कीजिए, और आपको अगर डाउट्स है, बिकॉज दीज आर ऑल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, सो दैट आपको ओके। कुछ डाउट रहेगा आप पूछिए. ओके सर। ट्रांसपिरेशन में व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? So creating suction force. So it is required to create the transpiration pull. Okay. Transpiration pull is the conduction of water. So cooling of plant. Yes, both. One is the conduction of water and minerals, the other is the keeping the plants cool. So you can say cooling the plants. Okay. सर मिनरल्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है ना सर कंडक्ट। Absorption of minerals is by active transport. Conduction is by, don't confuse between ट्रांसपिरेशन absorption and conduction. है ना? Absorption of water is by what process? सर एक्टिव ट्रांसपोर्ट सॉरी ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस सर मिनरल्स लगा था ऑस्मोसिस। Conduction of water is by what process?
Sir, conduction of water. Sir, Conduction. transpiration pull, root pressure, transpiration for cohesion, adhesion. Okay, all these kind of things are for the conduction. Okay, शब्दों में कंफ्यूज मत होइए. Absorption and conduction. अच्छा मतलब ऊपर जाना ना. Conduct, conduction means conduct करना. अच्छा, आना Electricity, जाना, आना जाना. हाँ आना जाना बस कंडक्ट कर रहा है. इलेक्ट्रिसिटी, इट इज ए गुड कंडक्टर और नॉट. ओके, इट इज अलाउइंग इट टू फ्लो थ्रू इट और नॉट. दैट इज ए कंडक्टर. गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज ए कंडक्शन. अब्सॉर्प्शन, रूट्स में आपका चैप्टर का हेडिंग ही वो था भैया. अब्सॉर्प्शन, absorption of water and minerals, conduction of water and minerals. So absorption is by the process of osmosis, conduction is by the process of तीन चार प्रोसेस है जिसमें ट्रांसपिरेशन पुल है, रूट प्रेशर है, एडेशन कोहेशन है, ये सब चीज़ है. ठीक है. सो कूलिंग ऑफ द प्लांट्स, ऑफ कोर्स वी डू द प्रेस्पिरेशन. पसीना छूटता है, जब पसीना उड़ जाता है तो अपने बॉडी को कूलिंग मिलती है. ओके, सेम चीज़ जो है ट्रांसपिरेशन के द्वारा भी पौधों को कूलिंग मिलता है ऑन द हॉट डे. द रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर फॉर द प्लांट इज वेरी लेस. एक बार जब पानी वो प्लांट हाइड्रेट हो गया पानी से तो उसको अब बहुत पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है जो उसके फोटोसिंथेसिस में. ओके, और अदर एक्टिविटीज़ है उस सब में जो है इसकी रिक्वायरमेंट लेस देन 2% है. अगर 100 ml पानी उसमें जा रहा है, ओनली 2 ml उसको फोटोसिंथेसिस के लिए, अदर एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरत है. तो ट्रांसपिरेशन आप ये देख सकते हो कि 98 ml पानी वो क्या हो रहा है, वो केवल भाप बन के उड़ रहा है. और उसका मेन उपयोग क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट कर रहा है फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर, और दूसरा पौधे को ठंडा रखने के लिए. इस पर्पस के लिए 98% ऑफ द वाटर इज यूजफुल. रिमेनिंग 2% ओनली यूजफुल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड अदर एक्टिविटीज. कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं टू डेमोन्स्ट्रेट ट्रांसपिरेशन. एक्सपेरिमेंट नंबर 1 इज how we are going to, if you take a potted plant, page number 55, फिगर 5.1, आप देखोगे कि पौधा जो है गमले में रखा हुआ है और ये पौधा भी थोड़ा सा चौड़े पत्तों वाला पौधा है और उसको हमने जो है पॉलीथीन बैग से कवर कर दिया. जब हम लोग उसको नीचे बांध देते हैं पॉलीथीन बैग से कवर करके, तो कुछ समय के बाद आप देखोगे कि उसके अंदर वाटर वेपर जो है, वाटर ड्रॉपलेट्स जो है एक्यूमुलेट होता है. तो कहाँ से आया ये वाटर वेपर, दैट इज द क्वेश्चन. सो थ्रू ट्रांसपिरेशन द लीव्स आर डूइंग ट्रांसपिरेशन so that water vapor is being formed. If outside atmosphere is not very hot, okay, then जो अंदर का वाटर वेपर है वो आसानी से वो जैसे कि बोलते हैं मॉइस्चर टाइप का, वो बन के ड्रॉपलेट्स टाइप का आपको दिखाई देगा, जल्दी दिखाई देगा. कोबाल्ट क्लोराइड एक केमिकल है, क्लास 9 में भी आपने पढ़ा था, वाटर ऑफ हाइड्रेशन. कोबाल्ट क्लोराइड जब वाटर लेता है तो it will turn from the blue color to pink color, drastic color change. Cobalt chloride, CoCl2, cobalt chloride. ये CO है और ये भी CO है, दोनों में क्या फर्क है? ये कैल्शियम है, वो कोबाल्ट. कोबाल्ट कैल्शियम कौन सा है? ये ये कहाँ लिखा है मैंने? बोथ आर CO. वो सर हम ध्यान नहीं दिए. ये छोटा वो है, बड़ा वो है, ये कौन एलिमेंट है? सर कोबाल्ट. कोबाल्ट. ये क्या कंपाउंड है?
हाँ सर। This one is which compound? कार्बन मोनोऑक्साइड सर। ठीक है, CO, O स्मॉल रहता है, वो है कोबाल्ट। दोनों C और O कैपिटल में है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो कोबाल्ट क्लोराइड है COCl2, कोबाल्ट क्लोराइड ब्लू कलर में होता है। when it is coming in the contact with water or water vapor, it will become the pink color। कोई डाउट ही नहीं रहता है ना, ब्लू और पिंक एकदम अलग अलग कलर हैं, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं। तो क्या होता है, ये वाटर अपटेक कर लेता है 6H2 समथिंग लाइक दैट, एंड इट विल अपीयर इन द पिंक कलर। तो पेपर में आप अगर इस कोबाल्ट क्लोराइड को ऐड करते, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर मिलता है, वो अगर यूज़ करोगे तो इस पॉलीथीन बैग के अंदर रखने पे कुछ देर के बाद वो ब्लू से पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी बताएगा कि वो वाटर जो है अंदर बन रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वाटर वहाँ पे अंदर बन रहा है। देयर आर 3 अदर सेटअप्स आर देयर। फिगर 5.2 आप देखिए। तो समय फिगर 5.2 आपको दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर, पहला दो ए और बी में सर वाटर ड्रॉपलेट दिख रहा है। हाँ हम लोग जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें एक सेट ऐसा रखते हैं जिसमें कि कोई कंडीशन चेंज नहीं किया जाता है। ओके, अभी हम लोग जैसे कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि पौधा है, उसको हमने बंद कर दिया, और पौधा है और उसमें हमने पेपर रखा। कंट्रोल हमने क्या किया कि पौधा है ही नहीं और केवल पेपर है। ठीक है, तो ये बताता है, कंट्रोल ये बता रहा है कि जो समय में पौधा के कारण ब्लू कलर का पेपर पिंक बन गया, अपने से कुछ देर के बाद ये ब्लू कलर का पेपर पिंक नहीं बनता है, लेकिन जब आप पौधा रखते हैं उसमें तभी वो पिंक हुआ। इसका मतलब ये है, ये कोबाल्ट क्लोराइड इंडिकेटर है कि वाटर वेपर बना। ओके, so an experiment to demonstrate transpiration in plants. Firstly, water droplets will appear in the bell jar A and B containing the plant. Secondly, cobalt chloride paper will turn from blue to pink in the bell jar B, but not in C. सर कोई भी पानी के साथ तो वो हो जाएगा, कोई भी पानी, पानी कोई भी। हाँ, पानी पानी होता है। और तुम बोल रहे हो गंदा पानी और स्वच्छ पानी, क्या? नहीं सर, क्यों प्लांट का पानी ट्रांसपिरेशन वाला अलग, उधर वाला किसके? पानी तो पानी होता है, वो प्लांट से आए कि एनिमल से आए। और सर गंदा और अच्छा पानी में देखो, ये तो डायरेक्ट पानी है भी नहीं, ये तो वेपर है ना। सर, इसलिए कंफ्यूजन हुआ था। मॉइस्चर, Yes, मॉइस्चर है, ये डायरेक्ट लिक्विड वाटर भी नहीं है, तो मॉइस्चर के फॉर्म में है, वो उसके ऊपर बैठेगा। तो इसमें और आपको इम्प्यूरिटी होने का चांस कम है, इम्प्यूरिटीज होने का चांस कम है। लिक्विड वाटर में तो फिर भी आप कुछ कुछ डिजॉल्व हो सकता है, गंदा पानी, अच्छा पानी, सब कुछ हो सकता है। ये तो फिर भी डायरेक्ट वेपर फेज में है। सर तो सर चेंज सर पेपर
बस वाटर से ना करेगा सर, अब वो इम्प्योर है या फिर प्योर है उससे फर्क नहीं ना पड़ेगा। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कोबाल्ट क्लोराइड इज द कंपाउंड, as it is this salt is blue in color, but when it takes up water it becomes the water of hydration. If I am not wrong it is 6H2O, but you can check, I am not sure. So cobalt chloride hexahydrate करके बन जाएगा। तो ये जब हाइड्रेटेड बनेगा दिस इज नोन एज वाटर ऑफ हाइड्रेशन। क्या ये कोई केमिकल रिएक्शन हुआ क्या? So basically what has happened is, this is what we say the formation of adduct. Okay, so this is not a direct because cobalt chloride, what is cobalt chloride? Ionic compound, covalent compound. सर ये सर है सर कोवैलेंट। क्यों? सर कार्बन है सर। अरे भैया कार्बन नहीं है, कोबाल्ट है। हाँ वही तो। सर गट फीलिंग आ रहा है सर, ये कोवैलेंट है। अरे नहीं नहीं, gut and but is not required here. You just see what is this one. So this is Cl2 is what? क्लोरीन सर। Chlorine. So two chlorine. So here it will two chloride ions will form. Cl minus, two Cl minus ions will form. Okay. So two Cl minus ions will form. This is group number 17. No, two Cl minus ions will form. So what you will expect, it is reacting with the cobalt is a metal or not? यस सर। Cobalt is a metal. So metal is reacting with the non-metal, that two fluorine, chlorine, bromine, 17 group wala. Okay, so what it is going to form? Generally, okay, this one is the ionic compound. Okay, CO2 plus. Okay. कोबाल्ट का तो 27 है ना एटॉमिक नंबर। It is a transition metal. So here हाँ cobalt सर। chloride is a ionic compound. Okay, it is soluble in water. So what you can do is people make what you say cobalt chloride paper. ऐसे पेपर लिया, पेपर में कोबाल्ट क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाए और उसमें डुबा दिया पेपर को। तो जब पानी में डिसॉल्व करते हो, आयोनिक सॉल्यूशन है ना, पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद पेपर को सुखा दिए, सुखाने पे इसका कलर क्या हो जाएगा पेपर का? सर ब्लू हो जाएगा, ब्लू। हो जाएगा। ब्लू। ब्लू हो गया पेपर, आसान है। तो इस टाइप का पेपर आप बना लिए, पेपर बना के ये बेल जार टाइप वाले में रख दिए और फिर आप वेट कर रहे हो, अगर फिर से कहीं से पानी आएगा तो फिर ब्लू से वो पिंक बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है आसान होता है। अब कोई आप वो जो है सर एक क्वेश्चन सर पूछ ले। पूछो। सर कॉपर क्लोराइड जब सर पहले से ब्लू होता है तो सर उसको जब पानी में डिप करते हैं तो उसी टाइम पिंक क्यों नहीं हो जाता है? कॉपर क्लोराइड, व्हाट इज दैट? सर सॉरी, कोबाल्ट क्लोराइड। हाँ कोबाल्ट क्लोराइड, हाँ। व्हाट इज द क्वेश्चन? कोबाल्ट क्लोराइड। सर जब उसका सर पहले से कलर ब्लू रहता है तो जब सर उसका पेपर बनाते हैं तो सर वाटर में जब डिप करते हैं तो सर उस टाइम पेपर का कलर पिंक क्यों नहीं हो जाता होगा? तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो भैया। तो वाटर में नहीं डिप करते हैं ना, COCl2 में डिप करते हैं। कोबाल्ट क्लोराइड इज ब्लू कलर, यू आर डिसॉल्विंग इन वाटर। ओके, बीकर है, पानी में डिसॉल्व किया। ओके, सो COCl2 का सॉल्यूशन बना, इसका कलर क्या रहेगा? ब्लू सर। है? ब्लू कैसे रहेगा? पानी में जब डाल दिया तो सर सॉरी, पिंक 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 पिंक। ही रहेगा। पानी में डालने से फिर ब्लू कैसे हो जाएगा? फिर उसके बाद इसमें पेपर को डिप किया। ओके, अभी भी वो पिंक है क्योंकि पानी है ना। फिर ये पेपर को निकाल के धूप में या कोई ओवन में इसको सुखा दिए, सूखने के बाद ये फिर ब्लू हो जाएगा। अब ये ब्लू पेपर को ले लो और अपना एक्सपेरिमेंट करो। तो वही क्वेश्चन मतलब था जब सर, तक पानी है उसमें तो वो ब्लू है। हाँ, जब तक इसमें पानी रहेगा पिंक होगा, वो ब्लू पानी पिंक रहेगा। तब ब्लू रहेगा। जी सर वही क्वेश्चन था सर। राइट, नेक्स्ट
measurement of transpiration. ये क्या? How can we measure transpiration? क्या करेंगे? यहाँ पे दो मेथड्स बताए गए हैं, वेइंग मेथड और दूसरा है फोटोमीटर मेथड। वेइंग मेथड, वेइंग आपको पता है, वेइंग मतलब वेट लेना। तो टेस्ट ट्यूब ले लिए, उसमें पानी भरे और ऊपर में वाटर, ऊपर में ऑयल का लेयर। ऑयल क्यों डाले? ताकि जो पानी है वाटर इवापोरेट नहीं होगा। नहीं हो पाए। उसके बाद आपने क्या किया? पौधा डाल दिया इसमें, ठीक है। पौधे में पत्ते हैं, पत्ते में ट्रांसपिरेशन होता है। अब आपने पहले वेट ले लिया इसका, ये समूचा चीज का वेट ले लीजिए। अच्छा, उसके बाद 1-2 दिन के बाद फिर से वेट लीजिए। वेट आप देखोगे कि घट गया। क्यों घटा? ट्रांसपिरेशन हुआ। हाँ, ये जो भी पानी था, पानी का लेवल भी आप देखोगे कि कम हो गया है, और इसका जो टोटल वेट है वो भी कम हो गया। तो इससे पता चलता है कि ट्रांसपिरेशन हुआ, वाटर का लॉस हुआ। दूसरा मेथड है जो कि बोलते हैं हम लोग फोटोमीटर, नॉट फोटो मीन्स टू ड्रिंक। सर कल जो गैनोंग फोटोमीटर बताए थे वो क्या था सर? वही अभी वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सर। तो फोटो PHOTO लिखे थे। नहीं, फोटो नॉट PHOT, वो फोटोमीटर। सो गैनोंग फोटोमीटर क्या होता है कि हम लोग ये जानना चाहते हैं कि पौधा कितना पानी लिया, कंज्यूम किया। तो कैसे पता चलेगा? क्योंकि अभी हम लोग मेजर करना चाह रहे हैं, ये नहीं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो वाला हो गया कि होता है कि नहीं होता है, वो हम लोग कंफर्म कर लिए कि होता है। अब हम लोग जानना चाहते हैं कि कितना होता है। तो इसके लिए एक सेटअप, सिंपल सेटअप है, कोई बहुत इसमें। बीकर में लिए पानी में डाला कुछ रंग, okay, some kind of color, some dye you can put। उसके बाद कैपिलरी ट्यूब डाले। कैपिलरी ट्यूब का मतलब क्या होता है? सर वो पतला सा ट्यूब सर। पतला ट्यूब, कैपिलरी मतलब पतला ट्यूब। तो for the sake of it I am making a simple diagram here. Now what is happening is, water that is colored is there, कैपिलरी ट्यूब में ये वाटर एंटर करेगा, एंटर करके ये जाते रहेगा। लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट आपको करना है कि इसके अंदर एक वाटर बबल को इंट्रोड्यूस करना है, सॉरी एयर बबल। आपने कभी देखा ये वाला लेवलिंग मीटर एक होता है ना, लेवलिंग मीटर? लेवलिंग मीटर, वो जो मिस्त्री वगैरह का जो काम करते हैं, या लेवल हम लोग को चेक करना होता है। सर अपने इंस्टीट्यूशन में तो माइक्रोस्कोप नहीं दिखा सर। so you are able to see something on my mobile?
ओके, दे विल बी समथिंग लाइक दिस। सो जैसे हम लोग ऐसे करते हैं तो इसमें जो बबल है, आई डोंट नो वेदर यू आर एबल टू सी ऑन योर स्क्रीन। हाँ सर राजू सर, स्क्रीन पे जा रहा है हाँ सर तो वापस। हाँ तो इसमें देखिए जैसे हम टिल्ट कर रहे हैं तो बबल भी अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं और बता रहा है कि एंगल कितना है। एकदम जब ये हॉरिजॉन्टल करेक्ट पोजीशन पे रहेगा एकदम सेंटर पे, तो बबल भी बीच में आता है। तो ये टाइप का जो सेटअप है लेवल जानने के लिए मिस्त्री लोग वगैरह सब जो है एक यूज करते हैं इसको, बबल रहता है। तो इसमें बस यही एक लिक्विड बना हुआ रहेगा और उसमें बस एक एयर बबल रहेगा। तो यहां पे भी क्या किया कि वाटर कैपिलरी ट्यूब के अंदर जा रहा है, आप पर्पसफुली एक एयर बबल उसमें इंट्रोड्यूस करते हो। और एयर बबल को आप कैसे सेट करोगे, इस पोजीशन पे लेके आओगे यहां पे, क्योंकि इसके बाद स्केल आप रखोगे यहां पे, एक स्केल को फिट कर देते हो। अपना रेगुलर जो रूलर रहता है 1 2 3 4 वाला, ओके, रूलर है। और यहां पे एक और कंट्रोल नॉब रहेगा, ये एक कंट्रोल नॉब है जहां पे कुछ पानी एक्स्ट्रा आप रखें। एयर बबल के बाद फिर वाटर है कंटिन्यूअस, ओके। यहां इस चेंबर तक गया और यहां पे पौधा है, यहां पे पौधा है। सो water is a continuous from here to here except this point, यहां पे एयर बबल है, ओके, एयर बबल। ये एयर बबल का पोजीशन आपको लगता है कि हिलेगा डुलेगा इधर उधर, नॉर्मल सेटअप आपने बना के रख दिया स्टेबल एक टेबल के ऊपर, क्या एयर बबल का कोई मूवमेंट होने का चांस है क्या? कोई चांस नहीं होगा सर, नहीं होगा, जस्ट स्टेबल रहेगा। क्योंकि आप जब तक इधर कोई लेवल चेंज नहीं करते हो, इस तरफ में पानी का या इस तरफ में पानी का लेवल आप चेंज नहीं करोगे, तब तक ये बबल का जो लोकेशन है सेम रहेगा, उतना ही रहेगा। अगर ये बबल इस तरफ जा रहा है टुवर्ड्स द प्लांट, इस तरफ, इसका मतलब क्या हुआ? इस तरफ वाटर सर इधर का सर कम हो रहा है। हाँ, इधर जो है, इधर आपका पानी कुछ कंज्यूम हो रहा है, कम हो रहा है, इसीलिए ये इसकी तरफ खिंचा रहा है, ये बबल इसकी तरफ खिंचा रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि प्लांट के लीव्स से ट्रांसपिरेशन हो रहा है, और ट्रांसपिरेशन के कारण जो वाटर का लॉस हो रहा है, उसके कारण जो ट्रांसपिरेशन पुल बनता है, ओके, ये खींचता है पानी को अपनी तरफ, जिसके कारण ये एयर का बबल भी इस तरफ मूव करेगा। ठीक, यहां पे रूलर लगा हुआ है, आपके पास टाइमर भी है, आपको पता है कि क्या टाइम पे कितना मूवमेंट हो रहा है बबल का। आप रेट का भी पता लगा सकते हो, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी पता लगा सकते हो। तो जितना यहां से इसका एयर बबल मूव करेगा, okay, that you know that how much centimeters of the movement is there. Based upon that one, we are also able to calculate how much amount of water is lost, okay, and further आप टाइम को भी अगर कंसिडर करोगे तो क्या स्पीड पे हो रहा है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, रेट ऑफ द ट्रांसपिरेशन भी कैलकुलेट। चलिए, एक बार आपने एक्सपेरिमेंट किया, हो गया, आप फिर रिपीट भी करोगे। रिपीट करते समय आप चाहते हो कि भैया बबल अब वापस अपने पोजीशन पे चले जाएं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, अब आपको इस तरफ पानी भरना है, तब इस तरफ जाएगा ना बबल, फिर वापस अपने ओरिजिनल लोकेशन पे जाएगा। तो उसके लिए आप पानी यहां से पोर नहीं कर रहे हो। यहां से क्यों नहीं पोर कर रहे हो?
क्योंकि इधर ऊपर में आपका ऑयल का लेयर है। अगर आप ऑयल ऊपर में नहीं दोगे तो यहां से वाटर इवेपोरेशन भी होगा, जिसके कारण आपका रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। करेक्ट। तो जिस तरीके से हमने इस तरीके से वाटर के ऊपर ऑयल दिया था, यहां पे भी हमने ऑयल दिया है। टेक्स्ट बुक में साफ तरीके से वो नहीं दिखाया गया है। तो आप ऑयल दोगे टू अवॉइड दिस वन, तो इसीलिए आप यहां से पानी नहीं दे सकते हो। आप क्या कर रहे हो, यहां पे जो है एक स्पेशल छोटा सा एक चेंबर में पानी डालते हैं और इस तरीके के स्टॉप कॉर्क टाइप का यूज करके आप वाटर इसमें इंट्रोड्यूस करोगे। इससे क्या होगा कि ये बबल वापस पीछे जाएगा। ओके, धीरे से जब आपको लगे कि अब सही पोजीशन पे आ गया, तब नॉब को बंद कर देना। तो यही सेटअप है फोटोमीटर का। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? एनी डाउट इज देयर इन दिस? Do you think it is complicated or easy? Simple only, no? Did you all understand? हाँ सर, Yes, sir. थोड़ा कॉम्प्लिकेट था। तो ये जो डिजाइन है, यानी पानी पीने वाला मेजरमेंट करने का जो डिजाइन है फोटोमीटर, कई लोगों ने कई अलग अलग टाइप के डिजाइन बनाए। आपके सिलेबस में गैनोंग फोटोमीटर है, दैट इज गुड इनफ। ओके सर वो सर वेटिंग वाला एक बार फिर से बता दीजिए ना। वेटिंग यानी सर वो मेजर टेम्परेचर में वेइंग वाला। वेइंग, ये वाला? यस सर, यस सर। हाँ, वेइंग मतलब इसमें बस ये है कि आप जो है अभी पौधा इसमें डाल दिए, पानी और तेल वाला इसमें जो है आपने पौधा डाला, जीरो टाइम, ये जीरो टाइम है। ओके, ये आपका स्टार्ट टाइम है। इसमें आपने वेट ले लिया, समझिए कि 10 ग्राम निकला। उसके बाद 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद क्या होता है, आप इस तरीके से देखोगे तो क्या होगा, क्या वेट बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा? घट जाएगा सर। घट जाता है। आप क्या करोगे, वो जो होता है, जो वेइंग बैलेंस होता है, उस पे आप रख के फिर से वेट देखोगे, तो वेट है, आपको लगेगा कि भाई वेट घट गया। बस वही है वेइंग मेथड, और कुछ नहीं है इसमें। तो ये जो वेट का लॉस हुआ, इससे भी आपको अंदाजा मिलता है कि कितना पानी का लॉस हुआ। ओके, इससे भी आप मेजर कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वाटर दैट इज लॉस्ट, okay, is lost in the form of transpiration only. Only 2% of that water is used for photosynthesis and other cell activities. Okay, so therefore whatever we are getting the result, that is giving roughly okay picture, आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रांसपिरेशन कितना पानी गया। फोटोमीटर में क्या हो रहा है, सेम चीज वही है। फोटोमीटर में आप क्या मेजर कर रहे हो? ये देखिए बोल्ड में वो जो फोटोमीटर फॉर मेजरिंग वाटर अपटेक। हाँ, यू रीड दैट सेंटेंस, फिगर 5.5 के नीचे जो बोल्ड में लिखा हुआ है, प्रियतोष पढ़ो। Photometer do not measure the water lost during transpiration, but measure the water uptake by the cut shoot. Some of the water is used by the cells to carry out other processes, for example, manufacture of food, photosynthesis. तो ये क्या बोल रहा है कि फोटोमीटर does not measure the water lost during transpiration, but what it is measuring? Water uptake by the cut shoots. तो क्या फर्क पड़ता है भैया इसमें, जो है ये ट्रांसपिरेशन के बारे में तो नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कितना पानी शूट्स के द्वारा लिया गया। इसको इतना बोल्ड करके, इतना हाईलाइट करके लिखने की क्या जरूरत है? और देखो इस सेक्शन का हेडिंग क्या है, मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन। जब ये एक्सपेरिमेंट आप जो लिख रहे हो मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन के बारे में लिख रहे हो, और इधर आप बोल्ड करके ये बता रहे हो, नो 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 नो, फोटोमीटर इज नॉट यूज्ड टू मेजर द वाटर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। तो भैया लिखा क्यों, जब ये ट्रांसपिरेशन का मेजरमेंट ही नहीं कर रहा है, तो इस सेक्शन के अंदर इसको देने की क्या जरूरत है? समझे? सर ये गलत है। गलत क्या है? सर तो ये तो ऑथर का मिस्टेक हुआ ना। ऑथर का मिस्टेक कहाँ है?
से ये देखे कि इसमें वाटर का ट्रांसपीरेशन हो नहीं हो रहा है फिर भी दे दिया। देखिए ये सेंटेंस में थोड़ा सा संशोधन करना चाहिए था। अब इन्होंने क्या लिखा कि photometers do not measure the water lost during transpiration but measure the water uptake by the cut shoot। इसको क्या करना चाहिए, photometers do not directly measure the water lost during transpiration but gives an indirect, okay, by measuring the water uptake by the cut shoot। जितना ये कट शूट कहाँ से आ गया? अरे शूट यानी शूट तो होता है, व्हाट इज ए शूट, प्लांट शूट मतलब क्या होता है सर अपर पार्ट। हाँ अपर पार्ट, शूट स्टेम जो भी है ऊपर, हाँ हाँ तो शूट, हाँ तो उसी शूट का जो कटिंग है वो कितना पानी ले रहा है वो उसको मेजर करेगा। तो वो जो पानी लेगा तो वो क्या, वो कहीं और थोड़ी बैंक में जाके तो नहीं जमा कर रहा, वो तो पौधे में ही जा रहा है। कहाँ जाएगा वो पानी, जो भी अपटेक हो रहा है वो तो पौधा में ही जा रहा है। अब पौधे में जो जाएगा, पार्टिकुलरली ट्रांसपीरेशन के बारे में तो नहीं ना हो सकता है। ट्रांसपीरेशन नहीं होगा तो और क्या होगा, बचा हुआ प्रोसेस लीफ में जा रहा है पानी स्टेम में, तो हाँ। ट्रांसपीरेशन तो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा ना। देखो अगर वो जो पौधा है अगर वो हाइड्रेटेड नहीं होता तो उसका लीफ खड़ा तो नहीं होता, विल्टेड हो जाता, यानी गिर जाता, ड्रूप हो जाता है ना। इसका मतलब है कि अगर वो तरोताजा है, इसका मतलब है कि इसमें सफिशिएंट पानी की मात्रा ऑलरेडी है। अब आप जब पानी दे रहे हो और ये पानी ले रहा है, बाहर में गर्मी है, सूरज की रोशनी वगैरह है, तो क्या करेगा, लीफ तो वाटर को लॉस करेगा और अपने वाटर को मेंटेन करने के लिए, अपने वाटर के स्टेटस को मेंटेन करने के लिए वो वाटर को सकअप करेगा, ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा वो सकअप करेगा वाटर को। तो क्या होगा, यहां पे वॉट एवर यू आर मेजरिंग इज नॉट डायरेक्टली द ट्रांसपिरेशन, बट ट्रांसपिरेशन छोड़ के और क्या है पानी का काम उधर, कुछ नहीं, फोटोसिंथेसिस है और कुछ अदर सेलुलर एक्टिविटीज है। कितना परसेंटेज उसका कंट्रीब्यूशन है, 2%। ओनली 2%। 2% तो कुछ हम लोग बायोलॉजी में कुछ नहीं मानते हैं। बायोलॉजी में 5% का एरर लेके हम लोग चलते हैं, किसी भी एक्सपेरिमेंट में 5% का एरर ले लिया जाता है। 2% इसका तो कंट्रीब्यूशन ओनली 2% है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि आप इनडायरेक्टली इसको लिखोगे कि पोटोमीटर्स दे आर प्रोवाइडिंग एन इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द वाटर लॉस्ट बाय ट्रांसपिरेशन, ओके, बाय मेजरिंग द वाटर अपटेक फ्रॉम द कट शूट्स, दैट्स इट। इसको इतना हाईलाइट करके कोई जरूरत नहीं था। सम ऑफ द वाटर इज यूज्ड बाय द सेल्स टू कैरी आउट अदर प्रोसेस, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग द फूड, फोटोसिंथेसिस, ओके। So limitation and precaution of photometer is there, that's not very this one। photometer किस लिए है, you just keep it airtight, it should be cut obliquely so that there is more water uptake। introduce the air bubble is not very easy, this that वो सब उतना important नहीं है। important क्या है यहाँ पे, गैनांग फोटोमीटर किस लिए यूज होता है, ऑप्शन कुछ कुछ दिया जाएगा, उसमें एक ऑप्शन रहेगा ओके, टू मेजर द ट्रांसपिरेशन, ओके। अब जैसा स्टेटमेंट इसने लिखा है आप उसको रॉन्ग समझ जाओगे, करेक्ट। हाईलाइट में क्या कर दिया उसने, फोटोमीटर डज नॉट मेजर वाटर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, माथा में तो वही फिक्स कर लिया जी सर। हाँ वो तो हो जाएगा तब गड़बड़। तो वही हम बोल रहे हैं कि फोटोमीटर विल मेजर द वाटर लॉस्ट बाय ट्रांसपिरेशन इनडायरेक्टली। नेक्स्ट पेज 58 में प्रोग्रेस चेक, सम क्वेश्चंस आर देयर। ट्रांसपिरेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज, हर्षित आप बोलिए। पेज नंबर 58 क्वेश्चन नंबर 1, प्रोग्रेस चेक, हर्षित। क्वेश्चन पढ़िए। हर्षित, आर यू गेटिंग माय वॉइस?
It is trying, but sound is not coming. ओके आयुष वन. यस सर. हाँ ये वाला क्वेश्चन पढ़िए. ट्रांसपिरेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज. सर सी नंबर, इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स. करेक्ट. गुड. नेक्स्ट प्रिंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. किताब खोल के रखे हो कि नहीं प्रिंस? वो रखे हैं सर. कम ऑन रीड द क्वेश्चन. Sir, in one of the experiments to demonstrate transpiration, we used cobalt chloride paper. What are the characteristics of the paper that suit the experiment? बोलिए. क्या कैरेक्टर है जिसके कारण हम लोग जो है इसको यूज कर रहे हैं? सर हम बोले. सर हम ट्राई करें. Sir, on gaining some moisture, the change of color in this paper take place from blue to pink. Yes, that's it. That is the answer. Correct. बहुत सारा इसमें complicated explanations कुछ नहीं है. Simple. It is changing the color. It is an indicator. It is acting as an indicator. Next. समय आप आंसर कीजिए. थर्ड क्वेश्चन. हाँ पढ़िए. थर्ड क्वेश्चन पढ़िए. समय. सर पेज नंबर. पेज नंबर 58. Look at the experiment shown in figure 5.4. Suppose you take a single flower with a long stalk dipping in water instead of a liquid wick. Will it survive the purpose? Will it serve the purpose? एक्सपेरिमेंट देखिए 5.4. क्या बोल रहा है ये? Yes sir, it will survive. सर्वाइव बोल के नहीं बोला है. विल इट सर्व द पर्पस? हाँ सर. It will serve the purpose. Okay. So सर लॉस ऑफ वाटर तो लीफ से होता है ना सर? सर तो सर इसमें लीफ दिया ही नहीं सर, तो पर्पस सर्व कैसे हो जाएगा? आपका क्या कहना है समय? Suppose you took a single flower with a long stalk dipped in water instead of a leafy twig. Will it serve the purpose? नहीं सर. सर लीफी ट्विग देखी नहीं थी इंस्टेड. क्यों? ट्रांसपिरेशन whether it will take place through the flower? नो सर, लीफ. लेकिन होता है, ऐसा बात नहीं है कि लीफ से फ्लावर से ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, ऐसा बात नहीं है. आप फ्लावर को लो, वो लंबा लंबा फ्लावर एक रहता है ना, मार्केट में मिलता है कभी कभी डेकोरेशन पर्पस में. बट गाड़ी वगैरह सजाने. हाँ लंबा उसका स्टॉक, अच्छा लंबा जैसा स्टॉक उसको मेंटेन रखता है. और इसमें यस लिखे नो लिखे थे. सर इसमें सर्व करेगा पर्पस या नहीं करेगा? Let us look logically. Let us not be biased. Why? हाँ लीफ है, ये फ्लावर है, बायस क्यों होना? आप लॉजिकली देखिए, हम आपको सिचुएशन बता रहे हैं, ऑब्जर्वेशन आप देखिए. फ्लावर को भी आप बिना लीफ का जब कट करके रखते हो, पॉलीथीन में आप कभी बंद करके रखो, कुछ समय के बाद आप उसमें ऑब्जर्व कर पाओगे कि कुछ वाटर वेपर बन रहा है. ऐसी बात नहीं है, वाटर वेपर आपको फॉर्मेशन दिखेगा. लेकिन just for a brief time, after that what is going to happen? उसके बाद it will die, वो मुरझा जाएगा, वो सर्वाइव नहीं करेगा, ये सब चीज वो नहीं चलेगा.
आपको लीफ चाहिए, क्योंकि लीफ में सबसे मेन चीज क्या है कि इट कैन सर्वाइव बाय फोटोसिंथेसिस। इट कैन सर्वाइव बाय फोटोसिंथेसिस, उसको पानी मिलते रहे, धूप मिलते रहे, तो वो अपना फोटोसिंथेसिस करके खाना बना लेगा। आप तो पानी दे ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, वो सर्वाइव करेगा। लेकिन फ्लावर आप धूप दे रहे हो, पानी दे रहे हो, कुछ समय तक सर्वाइव करेगा, उसके बाद वो मुरझा के खत्म हो जाएगा। वाटर वेपर बनेगा, ऐसी बात नहीं कि वाटर वेपर नहीं बनेगा। ओके, बट द पर्पस ऑफ योर एक्सपेरिमेंट इज व्हाट? ओके, द लॉस ऑफ वेट। ओके, लॉस ऑफ वेट को यूज करके आप रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन के बारे में बताना चाह रहे हो, वो इसके लिए सूटेबल नहीं है। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बताने के लिए आपको लीफ का कटिंग यूज करना पड़ेगा। स्टोमाटा उधर ही है, ट्रांसपिरेशन उधर ही से होगा। फ्लावर से भी ऐसी बात नहीं है, फ्लावर्स में भी कुछ कुछ ओपनिंग्स रहते हैं, वो वाटर वेपर एस्केप होगा, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट, बट दे आर नॉट स्टोमाटा एग्जैक्टली। नेक्स्ट, मेंशन एनी टू लिमिटेशंस इन द यूज ऑफ फोटोमीटर्स। ओके, वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। Three types of transpiration are there. Okay, stomatal transpiration, cuticular transpiration and lenticular transpiration. Stomatal यानी from the stomata, cuticular CUTICLE cuticle, cuticular, lenticular from the lenticels. Stomata is present in the Leaves. क्यूटिकल। सर ये क्यूटिकल क्या है? cuticle is a thin waxy coating that is present on the leaves. Waxy coating. ल्यूटिकल Eh? चाहिए सर, ल्यूटिकुलर। हाँ, लेंटिकुलर, लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सर वुड पे मतलब स्टेम पे। हाँ, वुडी स्टेम्स। यस सर। तो वुडी स्टेम्स लाइक गुआवा वगैरह में क्या होता है, आप कुछ शाइनी रहता है, बाहर से स्टेम शाइनी टाइप का स्मूथ रहेगा, और वैसे में क्या होता है, आप देखोगे कि उसमें छोटे छोटे ऐसे होल्स टाइप के थोड़े उभरे हुए आपको दिखाई देंगे। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि पोर्स हैं, और इन पोर्स से जो है वाटर वेपर एस्केप होता है। ट्रांसपिरेशन will happen from the woody parts of the stems, that is called the lenticels. This is also important, question repeat होता है। Okay, so सर ये सर क्यूटिकल बोले वैक्सी कोटिंग इन लीव्स ना? ओके सर। okay, it is there in the leaves, it is also present in the other parts of the plant. अभी जैसे क्या होता है, ये जो क्यूटिकल का लेयर है, जितना ज्यादा, जैसे कि कैक्टस वगैरह है, कैक्टस वगैरह आप देखोगे कि उसका मस्त चमक रहता है, बहुत अच्छा, वो आप देखो ग्लॉसी टाइप का लगता है वो। कि हर पौधा वैसा नहीं रहता ना, ग्लॉसी ग्लॉसी टाइप का हर पौधा नहीं रहता। वैसे आप देखो कुछ कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं। अड़हुल का फूल, हाइबिस्कस जो हम लोग बोलते हैं, उसके भी पत्तों को आप ऑब्जर्व करो कि शाइनीनेस अच्छा रहता है, उसका अच्छा शाइन आता है। और बहुत सारे पत्ते, जैसे कि गुलाब का पत्ता, पीला कलर का फूल वाला भी, पीला कलर का फूल, हाँ, मोस्ट ऑफ द यू सी। अब लेकिन आप गुलाब का पत्ता देखो, गुलाब के पत्ते में आपको उतना वो शाइनी अपीयरेंस नहीं रहता। फ्लावर शाइनी कर रहता है। हाँ, उसका पेटल्स वगैरह है थोड़ा सा शाइनी, लेकिन उसका लीफ वगैरह देखोगे तो वो उतना शाइनी नहीं है, और इनफैक्ट उसमें हल्का आपको एक फीलिंग जो है, एक मैट टाइप का फिनिश टाइप में आता है, एक ऐसे चिकना टाइप का फिनिश नहीं रहता है। तो वो जो हाँ, तो वो जो रहता है, वो जो वैक्सी टाइप का चिकना फिनिश आता है, वो एक वैक्सी कोटिंग है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल। तो उसका काम क्या होता है कि देर आर अप टू 1000 to 10,000 स्टोमाटा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर का एरिया हम लोग जब एक लीफ का लेंगे, तो उसमें 1000 से 10,000 छोटे 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 पोर्स रहते हैं, स्टोमाटा रहते हैं। तो बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है ये। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि मतलब पूरा पोर से ही बना हुआ है वो। लीव्स हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर ऑफ द स्टोमाटा। स्टोमाटा बहुत ज्यादा स्टोमाटा है, और हर स्टोमाटा कैसा बना है, गार्ड सेल्स के बीच का जो एरिया है,
वो स्टोमाटल ओपनिंग है। तो आप ये देखो कि लीफ इज द लंग्स ऑफ द प्लांट, है ना। जिस तरीके से हम लोग के फेफड़े में वो एल्वियोलाई रहता है, एयर बैग्स, आपने इसके पहले शायद 8th में, 9th में भी तो था आपका वो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, एल्वियोलाई, एयर सैक। तो उसी तरीके से सरफेस एरिया बढ़ाते हुए छोटे छोटे एयर पॉकेट्स के तरीके से जो लीफ है, लीफ में भी इतने सारे स्टोमाटा हैं, एक टाइप का जाली जैसा है जो कि ट्रांसपिरेशन करके पौधा को कूलिंग भी करता है, जो कि बाहर से अलग अलग गैसेस जो हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का एक्सचेंज भी करता है। ये जो पर्टिकुलर चीज है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी जो हमने बताया, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में एक बार आ गया। तो क्वेश्चन ये था कि स्टोमाटा का काम क्या है, तो इसमें आपको थोड़ा आगे में भी आएगा, पॉइंट आएगा। लेट अस गो स्टेप वाइज। ओके, चलिए। तो स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट इज कमिंग द मैकेनिज्म ऑफ द स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन। मैकेनिज्म, ओके, मैकेनिज्म हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। ओके, name an instrument used to find the rate of transpiration. मैनोमीटर सर। है मैनोमीटर? सर फोटोमीटर। हाँ, फोटोमीटर। ओके, ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में पीछे है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, 65 पेज नंबर बी में सी, 1C, इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, फोटोमीटर। तो इसीलिए हम बोले कि ऑथर थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटमेंट में स्टेटमेंट थोड़ी सी चलिए। ओके, सो आई थिंक वी आर गोइंग एट ए कंफर्टेबल पेस इन बायोलॉजी। केमिस्ट्री में क्या हो रहा है कि आप लोग